Welcome to VLearn. This is session 8 of Algorithm Analysis and Design. In this session we are going to discuss the topics which are as follows. First of all, we are going to discuss the separate chaining with list heads. After that we are going to discuss open addressing. Then the third one is dynamic resizing. Then after that we are going to discuss other solutions related to these problems. After that, performance analysis. After that we are going to discuss the advantages, and then at last we are going to discuss the drawbacks. So first of all, let us discuss about the separate chaining with list heads. So here first of all, there is no need to search for empty cells. where जब भी हम कोई भी ऑपरेशंस में सर्चिंग परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हम कभी भी एम्प्टी सेल्स को, एम्प्टी स्पेसेस को सर्च नहीं करते, काउंट नहीं करते हैं. देन द लोड फैक्टर कैन बी 1 और ग्रेटर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द लोड फैक्टर इन द प्रीवियस सेशंस. तो लोड फैक्टर क्या है? लोड फैक्टर की वैल्यू इट कैन बी 1 और ग्रेटर. 1 भी हो सकती है और उससे ग्रेटर भी हो सकती है. इफ देयर आर more items on the list, access time is reduced. That means if we have large number of items in a particular list, then the access time is going to be reduced in a particular accessing of the elements. After that, the deletion poses no problems. So in such cases, that means when we are going to use the separate chaining method, there the deletion process also becomes easier. Now in the last session we have discussed that in the chaining technique we have a size of the table is a prime number, but here when we talk about the separate chaining with list heads with the help of heading technique, here we removed the problem of the size which shows that which states that the table size should be in prime number. बट हम यहाँ पर क्या है, हमने उस प्रॉब्लम को रिमूव किया. दैट मीन्स जो टेबल का साइज है वो कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही होगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट हियर इज एरेज कैन बी यूज्ड एट ईच लोकेशन इन ए हैश टेबल इंस्टेड ऑफ अ लिंक लिस्ट. हम यहाँ पर एरेज का यूज कर सकते हैं हैश टेबल के लिए इंस्टेड ऑफ अ लिंक लिस्ट. जनरली वी यूज लिंक लिस्ट टू रिप्रेजेंट द हैश टेबल्स, but here we can use arrays to represent the hash table. Now when we talk about the open addressing, जब हम open addressing की बात करते हैं, here we use each bucket in the hash table is the head of a linked list. That means जो array है, जो bucket है, वो यहाँ पर hash table का header की तरीके से work करती है. Then after that all elements that hash to a particular bucket are placed on that bucket's लिंक्ड लिस्ट. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर बकेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, बकेट की जो लिंक लिस्ट है उससे कनेक्ट करते हैं, उसमें प्लेस करते हैं. देन रिकॉर्ड्स विद इन अ बकेट कैन बी ऑर्डर्ड इन सेवरल वेज. जितने भी रिकॉर्ड्स हैं किसी भी बकेट के अंदर उनको हम कुछ वेज में अरेंज कर सकते हैं, लाइक बाय ऑर्डर ऑफ इंसर्शन. लाइक जो भी पहले इंसर्ट हुआ है वो हम सबसे पहले शो करा सकते हैं. देन बाय की वैल्यू ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द की वैल्यूज वी कैन एक्सेस देम, और बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस ऑर्डर. फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस ऑर्डर मीन्स हाउ मच frequently we are using it, how much frequently we are accessing a particular data or element. By that criteria also we can categorize them or order them. Next comes the dynamic resizing. Dynamic resizing means changing of size dynamically. जब आप किसी चीज का साइज चेंज करते हो, it comes under dynamic resizing. So if the world were perfect, evenly distributed, not. So यहाँ पर जब भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, that means nothing is perfect, then that means we can easily change here the size of a particular element, particular array. The next point here is a perfect hash function maps every key into a different table location. जो perfect hash function होता है उसमें जितनी भी कीज होती हैं यहाँ पर उनको
एक फंक्शन की हेल्प से डिफरेंटली हम डिफरेंट लोकेशंस पर मैप कर सकते हैं, सेपरेटली मैप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए गुड हैश फंक्शंस. So in most cases large number of keys are compressed into a smaller range of index numbers. जनरली जो हम इसमें टेक्निक यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी कीज़ हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ कीज़ हैं, वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं. यहाँ पर कंप्रेशन का टेक्निक यूज़ करते हैं, उनको स्मॉलर रेंज में हम बाइंड करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडेक्स. आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर डेटाबेस डिटरमाइंस व्हाट द हैश फंक्शन नीड्स टू बी. दैट मीन्स यहाँ पर जो कीज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये शो करता है कि पर्टिकुलर जो डेटाबेस है वहाँ पर क्या फंक्शन यूज हुआ है, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट फंक्शन, व्हाट द हैश फंक्शन नीड्स टू बी, कि वहाँ पर क्या हम डिफाइन करेंगे किसी भी हैश फंक्शन को, व्हाट हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफाइंड. आफ्टर दैट फॉर रैंडम कीज, जो रैंडम कीज होती हैं उसके लिए हम टेक्निक यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज इंडेक्स इक्वल्स टू की मॉड्यूलस एरे साइज. जो भी हमारी पर्टिकुलर की है उसको अगर हम एरे साइज से डिवाइड करते हैं, देन द रिमाइंडर विच वी आर गोइंग टू गेट रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स वैल्यू. दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑपरेटर इज गोइंग टू रिटर्न द इंडेक्स. आफ्टर दैट the other solutions for this problem are hashing is implemented by the following techniques. हैशिंग को डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Here the first one is static hashing. Static hashing means fixed hashing. Then static external hashing. Static external hashing जो होती है वो फिक्स होती है. यहाँ पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं we perform them externally, that's why we call it static external hashing. Then comes the dynamic hashing. Dynamic hashing means we are going to continuously change the hashing. We can change here size or the procedure or techniques. Then comes the extendable hashing and at last linear hashing. So these are the different techniques. Now comes the performance analysis. Basically performance analysis, in the performance analysis part first of all comes the initialization. Initialization here is order of B. That means B denotes the number of buckets. जितनी भी buckets होंगी उसके थ्रू हम उसके ऑर्डर से हम इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करते हैं. आफ्टर दैट इंसर्ट एंड सर्च. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट्स इन अ टेबल और इन अ एरे एंड देन वी आर गोइंग टू सर्च देम विद द हेल्प ऑफ देयर की वैल्यूज. हियर यू कैन सी insert and search, that is of the order n number of elements in a table, all n key values have same home bucket. जितनी भी की वैल्यूज हैं उनकी सेम होम बकेट होगी, दैट मीन्स सेम पेरेंट बकेट होगी. आफ्टर दैट नो बेटर देन लीनियर लिस्ट फॉर मेंटेनिंग डिक्शनरी. हम यहाँ पर लीनियर लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फॉर टू मेंटेन ए डिक्शनरी, टू मेंटेन यू कैन से अ मेटा डेटा रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन विच वी आर स्टोरिंग. नेक्स्ट कम्स द डिस्टिंग्विश बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल सर्चेज. सो अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल सर्चेज यहाँ पर क्या होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज डिलीट. दैट मीन्स सक्सेसफुल सर्च फॉर रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड. जो हमारी सक्सेसफुल सर्चेज हैं, पर्टिकुलर डेटा को हमने सक्सेसफुली सर्च किया है, उनको आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन वी आर गोइंग टू डिलीट देम. उनको हम डिलीट करेंगे. आफ्टर दैट इंसर्ट, दैट इज अनसक्सेसफुल सर्च अलोंग इट्स प्रोब सीक्वेंस. जो भी हमने एलिमेंट अभी इंसर्ट किया है, वी हैव नॉट परफॉर्म द सर्च ऑन इट, सो देयरफॉर इट कम्स अंडर द अनसक्सेसफुल सीक्वेंस. द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ हैशिंग is a function of how full the table is. That is load factor alpha equals to n divided by b. Expected cost of hashing means यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज करते हैं किसी भी टेबल के रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसका लोड फैक्टर काउंट करने के लिए, एंड दिस लोड फैक्टर इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला कॉल्ड alpha is equals to n by b. Similarly the next thing here is it has been shown that the average cost under linear hashing are कि लीनियर हैशिंग के थ्रू अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, देन वी गेट दीज रिजल्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंसर्शन, व्हेन वी परफॉर्म द इंसर्शन वी विल गेट 1/2. आफ्टर दैट 1 + 1 divided by 1 minus alpha whole square. So this is basically we get when we perform the insertion operation. After that when we are going to perform the deletion operation, we get 1/2 multiplied by 1 plus 1 divided by 1 minus alpha. So these are the different results which we get after performing the different operations. Now comes the advantages.
basically the advantages of hash tables. So the main advantage of hash table over other table data structures is speed. हैश टेबल्स जो होती हैं हमारे वो फास्ट वर्क करती हैं, दे वर्क मच फास्टर देन दी अदर डेटा स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज बेसिकली अ मेन एडवांटेज ऑफ द हैश टेबल. देन द नेक्स्ट थिंग इज दिस एडवांटेज इज मोर अपेरेंट व्हेन द नंबर ऑफ एंट्रीज इज लार्ज. जहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर एरे में, किसी पर्टिकुलर फाइल में हमारे पास डेटा का साइज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लार्ज होता है, वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हैश टेबल का. दैट्स वाई इट इज़ बेनिफिशियल ओनली व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा एंट्रीज. द नेक्स्ट थिंग हियर इज हैश टेबल्स आर पर्टिकुलरली efficient when the maximum number of entries can be predicted in advance so that the bucket array can be allocated once with the optimum size and never resize. यहाँ पर हैश टेबल्स हम पर्टिकुलरली कब यूज करते हैं, जब हम किसी भी डेटा एंट्रीज का साइज प्रेडिक्ट कर सकते हैं एडवांस में. बेसिकली इसमें क्या टेक्निक यूज होती है कि अगर हमें साइज पहले से ही पता है तो हम पहले से ही साइज एलोकेट कर देते हैं एंड देन वी डोंट हैव टू रीसाइज दैट एरे और टेबल. So this is how generally we perform the operations in hash tables. So this is also the advantage of hash tables. Now comes the drawbacks, that means the disadvantages of hash tables. अब किसी भी टेक्निक के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. सिमिलरली along with the advantages of hash tables there are certain disadvantages as well. Here the first one is hash tables can be more difficult to implement देन सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्रीज. हैश टेबल्स जो होती हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं इम्प्लीमेंटेशन में. देयर इम्प्लीमेंटेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. देन ऑल्सो द बैलेंसिंग ऑफ ट्रीज इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. सिमिलरली द नेक्स्ट थिंग इज चूजिंग एन इफेक्टिव हैश फंक्शन फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज मोर एन आर्ट देन अ साइंस. किसी भी फंक्शन को हमें चूज करना है, किसी भी हैश फंक्शन के लिए एक प्रॉपर इफेक्टिव हैश फंक्शन अगर हमें चूज करना है तो उसको बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक आर्ट है. इट इज नॉट अ साइंस. दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर दैट हाउ इफेक्टिवली ही कैन यूज अ पर्टिकुलर टेक्निक. देन द नेक्स्ट थिंग इज इन ओपन एड्रेस्ड हैश टेबल्स इट इज फेयरली इजी टू क्रिएट ए पुअर हैश फंक्शन. जब भी हम ओपन एड्रेस हैश टेबल्स क्रिएट करते हैं तो वहां पर चांसेस ये रहते हैं कि जो हमारा हैश फंक्शन होगा वो पुअर होगा, इट विल नॉट बी ऑफ गुड क्वालिटी. नाउ एट द एंड देयर इज अ एक्सरसाइज फॉर यू. आफ्टर कवरिंग दिस सेशन you can try out these questions for your practice. So here the first question is, what are advantages of hash tables? Right now we have discussed these advantages, so you have to write them here. Then the next question is, what are disadvantages of hash tables? That means what are the different disadvantages to particular hash table. So this is the end of today's session. Thank you.